हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल पू फॉरएवर। सब हेलो ठीक? एवरीवन। सब बढ़िया ना? ओके, सो आज जैसे हम लोग आप देख सकते हो कि हम लोग साथ में आए हैं एंड आज का टॉपिक होने वाला है एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु हैव बीन आस्किंग मी कि क्या हमें जॉब कंटिन्यू करना चाहिए आगे जाके, कि प्लीज़ हमें आप सजेशन दीजिए क्या करें, हम जॉब कंटिन्यू यस, करें या फिर क्विट करें या वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दोज हुज बॉयफ्रेंड और हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मेरे व्यूज शेयर करूंगी। सो ये सिर्फ अब मेरे हैं, ठीक है? तो आप ऐसा मत बोलना कि अरे। और उसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि Yes. हम दोनों का क्या डिसीजन था। हाँ, बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया शादी से पहले और शादी के बाद हमने कैसे एग्जीक्यूट किया वो सब। सो दिस इज आवर व्यूज। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आप देखना पूरा वीडियो, उसके बाद आप अपना डिसीजन बहुत लेना, ठीक इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लाइक जो लोग रिलेट कर सके उनके लिए। यस। सो चलिए Start बताती करते हूँ मैं हैं। आपको। Hey guys, as you all know, internet is going crazy over glass skin. Yes, everyone wants a flawless skin, glass की जैसा skin चाहिए सब लोग को, एकदम shiny, radiant, है ना? लेकिन आपको पता है कि उसमें सबसे important ingredient जो use होता है वो है rice water. Yes, because rice water is loaded with antioxidants and it has good effects on aging as well. लेकिन राइस वाटर बनाना थोड़ा सा काम दम का, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा एंड ऑल्सो डेली थोड़ा बनाना भी। अगर मैं आपको कहूँ कि नाउ यू कैन गेट राइस वाटर इन द फॉर्म ऑफ योर फेस वॉश एंड ऑल्सो डे क्रीम, कैसा लगेगा? Well, your search ends here. Introducing Mamaearth Rice Face Wash that deeply cleanses the grim and grease, leaving your skin dewy and refreshed. It's enriched with a good dose of rice water. This face wash is rich in antioxidants that will help you to reduce your blemishes and dark spots. Unlike other face washes, this creamy texture doesn't strip your skin's essential moisture after cleansing. Instead, it adds a boost of hydration to your skin and locks it in. The goodness of niacinamide in this rice face wash reduces the appearance of acne marks and brightens your skin tone to give you that glass-like radiant skin that you have been wishing for. And it's also made safe certified, which means it contains no harmful chemicals, just goodness of nature. इसकी ना एकदम की इंग्रेडिएंट्स है ना गाइस, वो है राइस वाटर, नियासिनामाइड, ग्लिसरीन एंड विटामिन ई. इट gently cleanses your skin, hydrates your skin, it brightens your skin tone. So after washing your face with Mamaearth Rice Face Wash, you need to apply Mamaearth Rice Day Cream, which will give you radiant, healthier, and glass-like skin naturally, because it is enriched with rice water that will help you to maintain your skin's moisture and strengthen your skin's barrier. The day cream helps you achieve clear and lit from within skin. It is formulated with niacinamide. The day cream reduces blemishes, dark spots, resulting in an even skin tone. It also controls sebum production and reduces the appearance of pore. That's not all. With SPF 30, the rice day cream also protects your skin from sun damage without being greasy or heavy. And it is also made safe certified, which means it contains no harmful chemicals, just goodness of nature. It has rice water, niacinamide, glycerine, and citric acid. सो गाइज है ना ये एकदम बढ़िया प्रोडक्ट और ऊपर से मेड सर्टिफाइड, तो आपको क्या टेंशन है? इट इज फुल ऑफ गुडनेस विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स. Guys, Mamaearth के products are all natural and free from harmful chemicals. You can buy these products from Amazon, Purple, Nykaa या फिर Mamaearth का खुद का ऐप है यार, वो जाके डाउनलोड कर लो ना. It is available on Play Store as well as iOS. And on downloading their app, users will get early access to all the sale and discount that keeps on going. So download it right now. And guys, whenever you buy Mamaearth ka product, don't forget to use my coupon code which is mentioned here to get extra 20% off. Yes. And guys, whenever you buy Mamaearth ka product, they will plant a tree on behalf of you, and the exact location of the tree and the species of the tree will be sent to you on your mail ID. Isn't it a good initiative? Mamaearth is a plastic positive brand and an Indian brand. So guys, I have given the links in the description box. Do check it out. Okay guys, so I was first मैं आपको मेरी जर्नी बताती हूँ. मतलब फर्स्ट आई as soon as I got out of college, I got a job in HDFC Bank. I was working with HDFC. तो मैंने 3 years तक HDFC में काम किया. उसके बाद I switched my job and then I came to Axis Bank. ठीक है, तो till the time I got married, I was with Axis Bank. So मेरे रीजंस आपको बताती हूँ कि वाई आई लेफ्ट माई जॉब. ओके, बिफोर आई गॉट मैरिड टू सागर, मैंने अपना जॉब है पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरे कुछ रीजंस थे जो कि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर थी. तो फर्स्ट रीज़न आपको बताती हूँ कि वाई आई लेफ्ट.
फर्स्ट रीज़न इज़ कि मैं शादी कर रही थी ऐसे इंसान से जो 6 महीने शिप पे रहेगा और बाकी 6 महीना बोलो या 2-3 महीना जितना ही महीना है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलो वो शिप पे जब रहेगा 6 महीना, दैट इज़ ओके, यू कैन वर्क एंड लाइक ठीक है, आपके कोई भी टाइम हो, सुबह से रात तक आप जॉब करते हो फिर आते हो, तो इट्स ओके। बट जब सागर शिप से आएगा तभी भी मेरे जॉब टाइमिंग्स तो वही रहेंगे। आई कांट एडजस्ट एंड आई कांट टेक लीव्स ना कि हाँ भाई वो आया है तो मैं एक एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं ले वैसा आप नहीं कर सकते Yes, कि so- पहले काम कर लिया एंड देन एक साथ 2 महीने Yes. छुट्टी ले ली, वैसा तो कोई वो तो आपको नहीं कर छुट्टी देगा सकते। नहीं। आपको जो भी सैटरडे संडे या फिर फेस्टिवल्स में जो छुट्टी मिलता है वो ही मिलेगा। तो हम लोग को दोनों को टाइम स्पेंड करने मिलेगा नहीं। एनीवेज 6 महीने तो बाहर रहेगा, उसके ऊपर भी अगर मैं जॉब करूँ तो भी मतलब एकदम थोड़ा सा ही टाइम मिलेगा, तो हम लोग आपस में एकदम बात भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते। वी हैव टू वेट फॉर वीकेंड्स एंड ऑल। Yeah. सो आई डिडंट वांटेड दैट। मुझे चाहिए था कि अगर ये सागर यहीं पे जॉब करता तो मैं जॉब कंटिन्यू कर सकती थी, मतलब मैं सोच सकती थी हाँ ठीक है चलो इधर ही है ना, तो एटलीस्ट वी नो कि ओके एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ आर गोइंग टू मीट ईच Together, अदर yeah. इन द हाउस। सो आई थॉट कि नहीं यार, मतलब एटलीस्ट इतना तो टाइम हम लोग एक दूसरे को देना चाहिए ना। अभी वो 24/7 में जब वो घर पे रहेगा, मैं नहीं रहूंगी, इवन ही विल बी बोर्ड, ही विल बी लाइक अरे क्या है यार, क्या करूँ मैं, पूजा तो नहीं है, जॉब पे जाती है। और मेरी जॉब टाइमिंग्स सागर को पता ही है। सागर बताओ जरा कैसा था जॉब टाइमिंग्स मेरे? इसकी टाइमिंग्स थी सुबह अराउंड 8 o'clock शी यूज टू लीव। ऑफिस चालू होता था अराउंड 9:30 10 o'clock, बट थोड़ा दूर था ऑफिस एंड शी यूज टू ट्रैवल लाइक बस ट्रेन फिर ऑफिस की बस, वैसा कर करके शी यूज टू रीच बाय 10-10:30। देन वहाँ से लेके कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था इसके ऑफिस का। रात को 8, कभी 9, कभी लकीली कभी महीने में एक बार निकली तो 6-6:30 बजे निकलती थी, वरना हमेशा इसका टाइमिंग 8-9 ये सब फिक्स था। और जब मंथ एंड हो बैंक में, बहुत लोगों को पता होगा बैंक में कैसा होता है, मंथ एंड देन क्वार्टर एंड ईयर एंड में तो 12, 12:30, 1 बज जाते थे इसको निकलते निकलते। ऐसे इसकी टाइमिंग्स थी। और ये एक्चुअली ब्रांच में नहीं थी, ये बैक ऑफिस में थी, कॉर्पोरेट्स के जो अकाउंट्स वगैरह जो देखते हैं ये उसमें थी, फिर भी उसमें भी इतना टाइम। यस। सो मतलब बोलते हैं ना कि आपका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। अगर प्रॉपर 8 घंटे की नौकरी या 9 घंटे की जॉब होती करेक्ट, तो भी आप शिफ्ट कंटिन्यू जैसा कर होता है, हम सकते हो। बोलते हैं यस 8 घंटे का। यस, आपको जब पता है कि ठीक है 9 बजे से आपको 5 बजे तक या 6 बजे तक मैक्सिमम आपका जॉब खत्म, उसके बाद आपको कुछ नहीं। बट हमारा केस ऐसा नहीं था। हमारा तो मतलब घर जाने का टाइम ही नहीं था आपको, मतलब कभी 8, कभी 8:30, कभी 7:30 ऐसे। सो इट वॉज वेरी वेरी मेस्ड अप। बट आई वॉज वर्किंग क्योंकि आई वॉज नॉट मैरिड, तो मैंने बोला ठीक है यार। तब मैं भी काफी सरप्राइज था तभी इसने जब बोला ना कि ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है मेरा जाने का ऐसा, तो मैं Because- उसको काफी बार बोलता भी था, अरे तू निकल जा ऑफिस से जल्दी, क्या के लिए इतना टाइम। फिर बोली नहीं काम रहता है एंड यू कांट लीव योर वर्क मिडवे। लॉग इन लॉग आउट इनका सब होता है, टाइमिंग्स रिकॉर्ड होता है ऑल। उसमें तो वही तो है, लेकिन अभी हाँ, तुम इनका बॉस एक- कैसे हाँ। बॉस के सामने कैसे बोलोगे कि मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं करूंगी इतना काम। और You इनका can't एक say that. ऐसा है कि इंडिविजुअल वर्क के ऊपर नहीं है, इनकी एक टीम है, तो टीम के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है कि वो जॉब उतना जो है वो एक चेन होता है कि चेन के हिसाब से तुम्हें करते जाना पड़ता है। बीच Yes. में एक लिंक टूट गया तो फिर वो पूरा काम इधर से उधर हो जाता है। Yes, so let's not get into the हाँ, work कि क्या मैं क्या काम काम करती करती थी। थी। बट द मेन थिंग इज कि मतलब मेरे जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ही ऐसे ऐसे थे। हाँ। सो आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट कि बाबा मैं इसको टाइम दूँ कि अपने आप को टाइम दूँ कि काम को टाइम दूँ। सो वो एक रीज़न था कि मुझे जॉब नहीं करना है वंस आई गेट मैरिड टू सागर। दूसरा रीज़न यही है कि वर्किंग आवर्स जैसे है। हाँ, उसके बाद है कि जो सागर का घर था और मेरी ऑफिस से इट वाज quite far away, yeah. तो वो है। एंड देन ऑल्सो बिकॉज जब आप एक जॉब करते हो गाइस, अगर आपको उसमें रिकॉग्निशन नहीं मिले या फिर उसका बोलते हैं ना कि रिवॉर्ड नहीं मिले, तो आपको भी एक काम करने में मज़ा नहीं आता, राइट? सो यू फील कि इतना मैं काम कर रही हूँ यार, मुझे तो कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मुझे तो सैलरी हाइक नहीं मिल रहा है, या कंपनी कुछ मतलब अप्रिसिएशन नहीं कर रही है। ये सब होता है ना फैक्टर्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक यार बैंक में जॉब कर रही है, वाओ, दे डोंट नो कि बैंक में बैंक एक नाम है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कितना सफ़र करना पड़ता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनको कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये नहीं पता आप जब तक आप जॉब नहीं करोगे बैंक में। सो दैट वॉज अ लॉट। एंड सी देखो, ऐसा नहीं कि पूरे बैंक में हर एक डिपार्टमेंट का काम होता है, डिपार्टमेंट डिफर करती है। कोई डिपार्टमेंट जल्दी छोड़ते हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता इतना, बट हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी काम था। सो बहुत सारे फैक्टर्स है, यही सब फैक्टर्स है जिससे मैंने सोचा कि नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। सो
अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी जॉब प्रॉपर, मतलब आपको पता है कि ये टाइम पे जाना है, ये टाइम पे आना है, प्रॉपर अगर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप भी ऐसे मेरे जैसे सोचते हो कि अरे यार अभी जब भी हस्बैंड आएंगे घर पे तब क्या करेंगे, तब वी कांट स्पेंड टाइम, वी कांट गो आउट ऑल्सो, लाइक अभी अभी आप कोई वेकेशन के लिए जाते हो, वैसे तो बैंक में 10 days का लीव होता है, लाइक वंस अ ईयर यू कैन टेक 10 days का लीव, बट उसके अलावा तो ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो ना गाइस। सो अगर आपको ऐसा नहीं यार मुझे थोड़ा हस्बैंड के साथ ही रहना है, देन आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन लीव योर जॉब। बेसिकली एंड वही है कि हस्बैंड खुद 6 महीना दूर रहता है, आप 6 महीना नहीं मिलते साल में, ऊपर से फिर आप जब आओगे 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए तो कोई रहता नहीं, ऐसा 2-3 महीने में वापस चले जाते, वो 2-3 महीने में भी आप कितने छुट्टी आएंगी आपको, वीकेंड में सैटरडे संडे आएगा, उसमें भी अगर बैंक में जॉब करेंगे तो बैंक में इसका मंथ एंड आ जाता है, क्वार्टर एंड आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसमें भी मैं फोर्स नहीं कर सकता इसको कि नहीं तू छुट्टी ले, आज छुट्टी ले, बिकॉज अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको करने की, तो वो चीज़ फिर क्या होता है दोनों तरफ से फिर वो एक गैप जैसा बन जाता है, तो इसके लिए हमने फिर ऐसा डिसाइड डिसीजन किया। लिया कि आई क्विट माई जॉब। एंड इन दिस डिसीजन सागर ने फुल सपोर्ट किया मुझे, मतलब सागर वॉज लाइक कि इट इज़ योर डिसीजन, 100% योर डिसीजन, तुझे करना है तो कर, नहीं करना है तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन विद मी, आई वोंट फोर्स यू। सो आई सेड कि ठीक है, आई विल नॉट कंटिन्यू दिस। एंड अगर आप मतलब घर पे ही हो सो यू कैन ट्राई आउट मेनी अदर बहुत जॉब्स, सारी बहुत सारी चीज़ें, जॉब्स हाँ होती है, हाँ। जैसे आप यूट्यूब कर सकते हो या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ब्लॉग्स, ये वो सब बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आजकल घर बैठे बैठे भी कर सकते हो आप, जो कि आपको अगर करना है तो आप यू कैन सी। मैं तो यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज यूट्यूब मैं इसके लिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे उसमें से पैसे मिलेंगे या फिर मैं फेमस हो जाऊंगी, नहीं उसके लिए नहीं, अगर उसके लिए बनाना होता तो मैं कब का स्टार्ट कर दिया होता। लेकिन आई डिस्कवर्ड यूट्यूब व्हेन आई गॉट मैरिड, आफ्टर आई गॉट मैरिड टू सागर, बिकॉज आई वॉज फ्री एंड आई डिडंट हैड एनी वर्क। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आई थॉट कि ठीक है चलो यूट्यूब भी स्टार्ट करते हैं, मेरा भी टाइम पास हो जाता है और मेरे लिए एक मेमोरीज जैसा है वो, बिकॉज मैं जब देखती हूँ कि हम लोग इधर घूमने गए थे, वहाँ पे Yes. घूमने गए थे, सो व्हेन आई सी फॉर माई सेल्फ आई अभी अच्छा फील लगता है गुड, देखने, यस यस। आई फील गुड। सो मुझे अच्छा लगता है, सो भले ही वो 2 लोग देखे या 2 लाख लोग देखे, दैट इज आप देख रहे हो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे उससे ज़्यादा है कि वो मेरी एक पर्सनल मेमोरी होती है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, और मैं ज़िंदगी भर उसे देख सकती हूँ, और मैं मतलब आने वाले जनरेशन्स भी जो है वो देख सकते हैं कि अरे ये सभी Yes. जो भी है ना, तो इसीलिए आई लाइक डूइंग यूट्यूब। सो दिस वॉज माई रीजन कि वाई आई लेफ्ट। जैसे मैंने आपको बोला सबका, दिस वॉज माई हाँ। ओपिनियन, ये मेरे व्यूज है, अगर आपका कोई और है कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सो एब्सोल्युटली फाइन, जैसा आप लोग को अच्छा ठीक लगे वो आप जैसा लोग जिसको करो। कन्वीनियंट लगे, Yes. जैसा कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग सबकी होती थिंकिंग है। अलग अलग होती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो टाइम मैनेज एंड आपके ऑल्सो हस्बैंड के साथ, यस, मतलब और वो सब चीजें जो है सेलर है उनको पता है कि कैसा होता है, मैक्सिमम सेलर्स जितने मैंने भी देखे उनकी वाइफ्स तो सब हाउसवाइफ ही होती है मोस्टली, या नहीं फिर करती कोई बिकॉज घर दे से, नो द पेन की 6 महीना दूर रहना पड़ता है, उसमें बात नहीं होती, सब एग्री करेंगे उस बात से भी, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था इसके वीडियोस पे कि हाँ आई नो द पेन ऑफ सेलर्स वाइफ एंड ऑल, वो सब चीजें एंड हैं। एक और भी होता है कि जब हस्बैंड जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के ऊपर आ जाता है, हाँ, घर का, correct, बच्चों का, correct, पेरेंट्स yes. का, एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन, सब कुछ करना पड़ता हाँ, है फिर। सो तुमको इसके ही लिए। करना है, तुमको जॉब भी करना है, फैमिली भी हैंडल करनी है, बच्चे Correct. भी हैंडल, सब कुछ करना है तुमको। तो अगर तुम सब कुछ कर सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जॉब के साथ साथ मेरे हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मेरे को बहुत सारे हॉलीडेज मिलते हैं, मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग्स है बहुत अच्छे हैं, मेरे को कोई, तो आप कंटिन्यू करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मेरा ये था गाइस, एंड आई नो कि अगर मैं बैंक दूसरा शिफ्ट करती या कुछ भी करती तो मतलब मुझे वैसे ही डिपार्टमेंट्स मिल रहे थे जिसमें मतलब टाइमिंग्स पता है ना। सो दिस इज माई रीजन, इट इज सिंपल एंड स्वीट, मेरे को कोई ऐसा घुमा फिरा के नहीं बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, दिस इज व्हाट depend इज, करता है, दिस इज हाँ, व्हाट क्या वाज लगेगा माय life। ओपिनियन। सो अगर आपका कुछ और कहना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। यस, बट मेरा मतलब मैं ऐसा जनरली बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा किसी को ये नहीं कर रहा, कि मेरा एक एडवाइस है कि आप ना करें तो अच्छा है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैं अभी हस्बैंड हूँ तो मुझे पता है कि अगर फिर क्या हो जाता है कि मेरी वाइफ अगर फिर ऑफिस से जाती रहेगी तो पहले मैं 6 महीने शिप पे हूँ, शिप पे जो सेलर्स है उनको पता होता है कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, आप पहले फैमिली से दूर, बच्चों से दूर सब होते हो, तो आप इतना मिस करते हो उनको, और फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद भी अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है
तो वो अभी हर एक का कैसा कैसा है वो आप जैसा हमने बताया कि सबकी अलग लाइफ है, बट एक थोड़ा सा खालीपन जैसा लगता है। फिर आप 2 महीने में चले जाओगे, फिर 6 महीना, मतलब वो साल भर वैसा, फिर वो थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता, फील होता है मेरे हिसाब से। एज ए हस्बैंड सेलर, एज ए सेलर मैं बोल रहा हूँ। अभी बाकी तो पूजा के भी एक अलग ही है, बिकॉज उसको भी मेरे को पता है कितना हम लोग दूर रहते थे, हम कितना हम एक दूसरे से हाँ ये फील करते हैं कि अरे हम लोग काश जल्द से जल्द घर पे आए, एक साथ टाइम स्पेंड करें जब टाइम नजदीक आता है। So- तो इसलिए फिर जॉब करेंगे तो उसमें आपको वो सब मिलेगा नहीं, आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, ये सब कर सकते बट हो। हाँ, तो वही है कि आपको चूज करना है वेदर यू वांट योर पर्सनल लाइफ और यू वांट टू Yes. मेंटेन बोथ Both. पर्सनल एज वेल एज वर्क लाइफ। सो आपका टोटली आपका डिसीजन है। जैसे सागर ने बोला कि तेरे को करना है तो कर, नहीं करना हाँ, है दैट मैंने इज बोला आल्सो सीधे एब्सोल्युटली इसको, ओके I विद will- मी। सो आई चूज्ड माय पर्सनल लाइफ ओवर माय वर्क लाइफ बिकॉज आपको तो पता है। हाँ, अगर आप बोलोगे कि अरे मेरी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आई एम अर्निंग इन लैक्स एंड मेरी टाइमिंग्स भी काफ़ी अच्छी है, सो व्हाट शुड आई डू देन? व्हाई आर यू गोइंग टू लीव दिस जॉब? हाँ, ऐसे ऐसे भी कुछ कुछ है लोग Yes, जो why? करते हैं, ऐसे Don't leave your भी job होते हैं then. भाई, सब हाँ, करते अगर हैं। ऐसा है कि मेरी सैलरी आपको अच्छी एक तो है, थोड़ा सा एक फाइनेंशियल एक हेल्प भी मिल जाती है वाइफ के साथ रहेंगे अगर आप, बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर वैसी होनी चाहिए प्रॉपर कि आप मैनेज करो टाइम एंड ऑल, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आई नो फॉर वुमेन कि काम भी करना है बाहर एंड देन घर भी संभालना है, और वैसे जब हम नहीं रहते तभी घर संभालना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और बच्चे आने के बाद तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हैट्स ऑफ उन सबको। इसलिए फिर अभी हमने ऐसा डिसाइड किया, तो अभी इसके लिए मैंने उसको बोला कि मत कर यूट्यूब, इसके लिए हम बना रहे हैं कि ताकि हम अपने मेमोरीज क्रिएट कर सके और बाकी जैसे आप लोग को अभी शेयर कर सके ये सब। सो दिस वाज माय एक छोटा सा एक व्यू ऑन हम लोगों का एक ही यस कि कि हमें एक थोड़ा हाँ कि एक्सप्लेनेशन जॉब देना करना था। चाहिए कि यस, नहीं जॉब करना चाहिए। सो मैंने आपको सब कुछ बताया कि करना चाहिए तो सब देखिए क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। नहीं करना चाहिए तो भी क्या है। तो ये है मेरी ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता है ना गाइस? लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर आपके कुछ डाउट्स और होंगे शेयर करिए वीडियो को, और इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए पूफ फॉरएवर को। We will be back with some other video some other day. Till then, बाय बाय and I love you all. बाय।